علیکم ویورس، ناول ایمان، امید اور محبت، رائٹر عمیرہ احمد۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح دبے قدموں شلف کی طرف چلی گئی۔ شلف کے پاس پہنچ کر کتابیں ہٹانے سے پہلے اس نے ایک بار محتاط نظروں سے پیچھے دیکھا۔ وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر چہرہ موڑ لیا۔ جن دو کتابوں کے پیچھے اس نے ریوالور رکھا تھا، انہیں بڑی احتیاط سے اس نے نکال لیا۔ پھر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ ریوالور وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ دیکھی کہ ایسے جال میں پھنستے پھنستے وہ خود اس کے جال میں پھنس گئی تھی، اور اب جب میں پلٹ کر اسے دیکھوں گی تو وہ نماز چھوڑ کر اطمینان سے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ہوگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں کتابیں اسی جگہ پر رکھ دی۔ واپس پلٹنا شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا، مگر اسے پلٹنا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ کس حد تک فریب دینا چاہتا ہے یہ مجھے، اب یہ جاننے کے باوجود کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں اور اسے قتل کر دینا چاہتی ہوں، اور یہ پھر بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ ماں مشتعل ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رکوع کی حالت میں تھا۔ تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی۔ ریوالور اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ مزید کچھ سوچنے کے بجائے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اور اس نے ریوالور اٹھا لیا۔ اپنے اندر اس سے یکدم عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور وہ ریوالور اٹھا کر ایمان کی پشت پر آ گئی تھی۔ ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آمد اور سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس نے درکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی پشت کا نشانہ لیا تھا۔ وہ سجدہ میں تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا، مگر کوشش کے باوجود وہ گولی نہیں چلا سکی تھی۔ اس نے کچھ بے بسی سے آنکھیں کھول دی۔ یہ شخص فریب کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر نماز پڑھ رہا ہے۔ جائے نماز پڑھ ہے، میں اس طرح گولی کیسے مار سکتی ہوں؟ جب میں صبح سے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو چند منٹ انتظار اور کر سکتی ہوں، صرف چند منٹ ہی کی تو بات ہے۔ وہ پیچھے ہٹ آئی، کتابوں کی شیلف سے ٹیک لگایا۔ وہ ایمان کی پشت پر نظریں جمائی کھڑی رہی۔ وہ اب سلام پھیر رہا تھا۔ امید نے برق رفتاری سے ریوالور اپنی پشت پر چھپا لیا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ امید، تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے امید کو مخاطب کیا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گردن واپس موڑ لی۔ میں نماز ختم کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے پہلے بات کرنی ہے۔ تم نماز چھوڑو دو اور اٹھ کر میری بات سنو۔ صرف آخری 2 نفل رہ گئے ہیں، وہ مجھے پڑھ لینے دو۔ تم جانتی ہو ہماری بات بہت لمبی ہوگی اور میں نماز کو درمیان میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اس نے نیت کر لی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی گالیاں نہیں دی تھی جتنی اس نے اس وقت ایمان کو دل میں دی۔ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اپنی نماز سے مجھ پر؟ ابھی کیا باقی رہ گیا ہے؟ کون سی جنت کی تلاش میں ہے یہ؟ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے 2 نفل ادا کیے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ منتظر تھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور وہ اسے شوٹ کر دے۔ دعا کرنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر جھک کر جائے نماز اٹھائی تھی اور اسے تہہ کرتے ہوئے امید کی طرف پلٹا تھا اور ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس پر ریوالور تانے ہوئی تھی۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں بھی یقینی دیکھی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ٹریگر دبا چکی تھی۔ پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا تھا۔ کمرے میں کسی دھماکے کی آواز گونجی تھی، نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا۔ ریوالور خالی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھی۔ ریوالور پوری طرح لوڈڈ تھا اور اب تو یہ شخص گولیاں نکال چکا تھا، اس لیے کہ تم مجھے شوٹ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا۔ وہ شاکڈ تھا۔ ہاں، میں مارنا چاہتی ہوں تمہیں، اور میں مار دوں گی کیونکہ تم اس قابل ہو۔ وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ ایمان نے اسے کبھی چلاتے نہیں دیکھا تھا، آج وہ دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں، ہر بات۔ میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں چھپایا جس کے جانے پر تم مجھے اس طرح قتل کر دینے کی کوشش کرتی۔ جھوٹ مت بولو اتنا جھوٹ، کم از کم اب تو نہیں، جب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ ہلکے بل چلائی۔ کیا جان چکی ہو تم؟ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو، ڈینٹل ایڈگر، جو منافق ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹی ہے، کمینی ہے اور سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کے جسم کو یکدم جھٹکا لگا۔ ڈینٹل ایڈگر! ایمان نے بھی یقینی سے زیر لب اپنا نام دہرایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہارے خون میں رچا ہوا تھا، تم کو وہی کرنا تھا، آخر کوئی یہودی ہونا۔ وہ بدلتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کیا سوچا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ اور پتہ چلے گا بھی تو میں کچھ نہیں کروں گی، سمجھوتا کر لوں گی۔ ڈینٹل ایڈگر، اگر تمہارا وجود مجھے کتنا گندا اور مکروہ لگ رہا ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ میں ایمان علی ہوں، ڈینٹل ایڈگر نہیں ہوں، اور دوبارہ مجھے کبھی اس نام سے مخاطب مت کرنا۔ اس بار وہ مشتعل ہو گیا تھا۔ نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا۔ نام بدل کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں یہودی ہوں، نہ ڈینٹل ایڈگر ہوں، اور اب تم مجھے اس نام سے پکارو گی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ دے ماروں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر دے مارا۔ ایمان نے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر بچتے بچتے بھی ریوالور اس کی کنپٹی سے کچھ اوپر لگا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں دوڑ گئی تھی۔ تم ڈینٹل ہو، ایمان علی کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہونٹ بھینچے یکدم آگے آیا۔ اب مجھے ڈینٹل کہو گی؟ اس نے امید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو، ڈینٹل
इसके मुंह पर इतने जोर का थप्पड़ पड़ा था कि वो फर्श पर गिर पड़ी। क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने से पहले अपने ऑफिस के लोगों के मुंह पर तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए थे, जहाँ सब तुमको डेंटल कहते हैं, जहाँ कोई ईमान अली को जानता ही नहीं है। एम्बेसी के लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए जो तुम्हें डेंटल कहते हैं। उठकर खड़ी हो गई थी। ईमान एकदम पीछे हट गया। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में तुम डेंटल एडकर हो तो सिर्फ मेरे लिए ईमान अली बनने का ड्रामा क्यों किया? क्यों मुझे गंदगी की दलदल में खींच लाए? मुसलमान होने का धोखा दिया, फ्रेब दिया, और अब मुझसे जान छुड़ा कर तुम यहाँ से चले जाना चाहते हो। वो चुपचाप इसे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं आता कोई शख्स इतना झूठा, इतना जलील, इतना बेज़मीर हो सकता है जितना तुम हो। मोहब्बत का फ़रेब देकर मुझको दोज़ख में फेंक दिया। इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी तुम में कि मेरे सामने खड़े होकर मुझे बताते कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। इस तरह चोरों की तरह फरार ना होते और मेरे साथ ये सब कुछ करने के बाद भी तुम ये तवक्का रखते हो कि मैं तुम्हें ईमान अली कहूँ और तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया है और ना तुम्हें छोड़कर भागा था। मैं यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। तुम कहाँ गए? जर्मनी या अमेरिका? इसका ख्याल था ईमान के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो खामोश रहा। अमेरिका का वीज़ा लिया तुमने मजहबी रसूमात में शिरकत करने के लिए। कौन सी मजहबी रसूमात? यहूदियों का सालाना इज्तिमा। तुम ऑफिस के काम से गए थे, मगर वहाँ तो तुम रिजाइन कर चुके हो। तुमने बैंक में अपना अकाउंट बंद कर दिए। इस घर से तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। जर्मनी में तुम्हारे पेरेंट्स अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। कहाँ गए हैं ये सिर्फ तुम जानते हो। ये घर तुम खाली कर रहे हो। मालिक मकान को इन्फॉर्म कर चुके हो। बाहर पोर्च में खड़ी गाड़ी कंपनी की है जो इस माह के खत्म होने पर कंपनी वापस मंगवा लेगी। अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी जर्मनी लेकर गए थे। तुमने कहा था तुम्हारे सारे पेपर्स में तुम्हारा नाम ईमान अली है। झूठ था ये। तुम्हारे सारे पेपर्स में तुम्हारा नाम अब भी डेंटल एडकर ही है। अपने अंकल से तुमने ये कहा कि तुमने मेरे साथ कोई एडजस्टमेंट की है और मजहब नहीं बदला। अभी भी यहूदी हो और ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। तुम मुझे एक हफ्ता का कहकर जर्मनी गए थे और इसके बाद यकदम राब्ता ख़त्म कर दिया और अब तुम एक माह बाद किस लिए आए हो ये मैं नहीं जानती, मगर जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी हकीकत मैं ज़रूर जानती हूँ। इसका ख्याल था कि ईमान के चेहरे पर खौफ होगा, शर्मिंदगी होगी, वो कोई बहाना बनाएगा या फिर माजरत कर लेगा। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वह सरद और बेतासुर चेहरे के साथ इसे यूं देख रहा था जैसे इससे यही सब कुछ सुनने की तवक्का रखता हो। तुम्हें छोड़कर चला गया इसलिए तुमने मुझे शूट करने का फैसला कर लिया। इसकी आवाज़ भी इसके चेहरे की तरह बेतासुर थी। मुझे तुम्हारे छोड़कर जाने की परवाह नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें इसी वजह से तुमने मजहब बदलने का फरेब देकर मुझसे शादी की। मैं तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह के लिए मानना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, खुद को भी। ईमान यकटक इसे देख रहा था। इसकी कनपटी से बहने वाला खून अब इसकी शर्ट को भगो रहा था, मगर वो इस जहम की तरफ मुतवज्जा नहीं था। कुछ और कहना चाहती हो तो वो भी कहो। मेरा कोई झूठ, फरेब और गुनाह भी मेरे सामने लाओ, या फिर कोई और इल्ज़ाम हो तो वो भी लगा दो। आज सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना जहर है, कितनी नफरत है, कितनी बदइतमादी है। वो तेज़ और बेतरतीब सांसों के साथ मुश्तिल नज़रों से इसे देखते रही। अमीर, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हें मुझ पर एतमान नहीं था, ना ही अब है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे तुम जैसे घटिया और जलील आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। ईमान का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम नहीं जानते इस एक माह में तुमसे शादी के फैसले पर मैं कितना पछताई हूँ। तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। मेरे सारे ख्वाबों, सारी ख्वाहिशों को कूड़े का ढेर बना दिया और मेरे वजूद को एक गटर। मैंने या जहाँ ज़ेब ने वो इसके अल्फाज पर साकित रह गई थी। वो बेखौफी से इसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। इसका नाम मत लो, वो राई। क्यों ना लूँ? मैंने तुम्हारा सच सुना है, अब तुम भी मेरा सच सुनो। तुम्हारी ज़िंदगी मैंने तबाह नहीं की, जहाँ ज़ेब ने की है। जिस दिन वो तुम्हें छोड़कर चला गया, इसका नाम मत लो। वो यकदम चिल्लाई। क्यों तकलीफ होती है या वो याद आने लगता है? और क्या फरेब दिया है मैंने? किस गुनाह की दलदल की बात कर रही हो तुम? वो औरत है जिससे मोहब्बत की है मैंने और फिर शादी की है। तुम्हारा बच्चा मेरा भी बच्चा है और मैं अपनी बीवी और बच्चा छोड़कर भाग नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई ऐसी औरत भी होती जिससे मुझे मोहब्बत ना होती, वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड होती, तब भी मैं इस गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे को छोड़कर भागता नहीं। मैं बेज़मीन नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैंने तुमसे झूठ बोले हैं कुछ मसलहत की खातिर, कुछ तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए, मगर तुमको सच सुनना है तो सुनो। हाँ, मैं अमेरिका गया था, पहले जर्मनी फिर अमेरिका। मैंने वीज़ा की दरख्वास्त मजहबी रसूमात में शिरकत की वजह बताकर दी, मगर मजहबी रसूमात में जनाजे में शिरकत भी शामिल है। मैं यहूदियों के किसी इज्तिमा में शिरकत करने नहीं गया था। मैं अपनी एक फैमिली फ्रेंड की आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए गया था। मेरे माँ बाप घर बेचकर गायब नहीं हो गए। मैंने अपने माँ बाप को एक दूसरी जगह घर खरीद कर दे दिया है, पुराना घर बेच दिया है। मैंने तुमसे ये कहा कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, जबकि मैं रिज़ाइन कर चुका था। हाँ, मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मेरे कुछ इख्तलाफात थे। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बुनियादी तौर पर यहूदियों की है और मैं यहाँ इस कंपनी की ब्रांच में बहुत अहम ओहदे पर काम कर रहा था। मेरा मुसलमान होना और मेरे नाम की तब्दीली इनके लिए एक बहुत बड़ा शौक होती, इसलिए मैंने इस बात को छुपाए रखा। मगर अभी कुछ अर्सा से मेरे बारे में कुछ अफवाहें इन तक पहुंची थी। शायद मैं अब भी इनको ये यकीन दिला देता कि ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, मगर अब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। मैं चाहता था मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो इसे किसी आइडेंटिटी क्राइसिस
का शिकार ना होना पड़े। मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे एक मुस्लिम के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कोई मसाइल खड़े करना नहीं चाहता था और कोशिश कर रहा था हर चीज़ सही जगह पर आ जाए। इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो दम बखुद इसकी सारी बातें सुन रही थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगी। चंद हफ्तों तक मेरे पासपोर्ट और दूसरी डॉक्यूमेंट्स में भी तुम मेरा तब्दील शुदा नाम और मजहब देख लोगी, क्योंकि मैं इसके लिए अप्लाई कर चुका हूँ। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फरार नहीं हुआ, इसलिए साथ लेकर गया था, क्योंकि मुझे जॉब के लिए कुछ जगहों पर अप्लाई करना था। यहाँ कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज से मेरी बात हुई, मगर मुझे इंटरव्यू के लिए इनके हेड ऑफिस ही जाना पड़ा। बुनियादी तौर पर मैं इसलिए जर्मनी और अमेरिका गया था। बैंक अकाउंट इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि वो कंपनी की तरफ से खुलवाया गया था। इसमें जो रुपया था, इससे मैंने अपने पेरेंट्स को जर्मनी में एक निस्बतन बेहतर जगह पर घर खरीद दिया है। वो लोग कहीं गायब नहीं हुए। ये सच है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। गाड़ी भी कंपनी वापस ले लेगी तो बाहर जाने से पहले तुम्हें फुटपाथ पर तो नहीं छोड़ कर गया। इसकी आवाज़ में तलखी थी। या तुम्हें किसी ने घर से तो नहीं निकाला, और मैं घर खाली करने की डेट से पहले वापस आ चुका हूँ। तुम्हें अगर नहीं बताया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अब भी जहाँ लेकर जाऊँगा वो इतना ही अच्छा घर होगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। और किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हो तुम समार्थना की? इसके चेहरे पर अब एक तल्ख मुस्कुराहट थी। हाँ, वो मेरे साथ जर्मनी ज़रूर गई थी, मगर मैं इसको लेकर भागा नहीं था। ये एक इत्तेफाक था कि इसे भी इन्हीं दिनों वापस जाना था। अमित को लग रहा था कि इसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता सर्द होता जा रहा है। तुमसे राब्ता टूटने की वजह ये थी कि मैं एक हादसे का शिकार हो गया था अमेरिका में। सड़क पर जाते हुए दो आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा वॉलेट ले गए और मेरे सर की पुश्त पर कोई चीज़ मारी। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। हॉस्पिटल में कई दिन के बाद मुझे होश आया, और इस दौरान वो लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सके, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। होश में आने के बाद भी मुझे ठीक तरह से कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरी याददाश्त ठीक नहीं थी, मगर मैं सब कुछ भूल जाता था। याद करते करते नॉर्मल होते होते कुछ और दिन लग गए। इसके बाद जब मैंने रब्ता करने की कोशिश की तो तुम यहाँ नहीं थी। रावलपिंडी का नंबर मेरे वॉलेट में था, इसलिए मैं वो भी खो बैठा। वहाँ भी तुमसे रब्ता नहीं कर सका, मगर मैंने सोचा कि तुम यही समझी होगी कि मैं कुछ मसरूफियत की वजह से तुमसे रब्ता नहीं कर पाया, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, याद आया, तुम अंकल की बात कर रही थी। मैंने इनसे झूठ बोला था। अमीर, मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस खबर से इन्हें तकलीफ पहुँचे। मेरे मज़हब तब्दील करने का ऐलान इन्हें रिश्तेदारों की नज़रों में बहुत बेइज्जत कर देता। वो लोग इनका बाइकाट कर देते। वो मेरे साथ इसलिए कभी नहीं रहे क्योंकि वो बुढ़ापे में इस इलाके में रहना चाहते थे, जो हमारा आबाई इलाका है, जहाँ हमारे सारे रिश्तेदार हैं। और वो लोग मेरे मज़हब तब्दील करने पर इनसे भी नाराज़ होते, इसलिए मैंने अंकल से झूठ बोला, बल्कि सबसे ही। मगर ये झूठ मैं अब नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि अब मुझे अपनी औलाद के बारे में सोचना था। वो बात करते करते जैसे थक कर रुक गया। अमीर बेयकीनी के आलम में इसका चेहरा देखती रही। इसीलिए मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। घर खरीद कर गिफ्ट करने के बाद और इसके बाद जो एक हफ्ता मैंने जर्मनी में गुजारा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ का हफ्ता था। मुझे पहले समझाया गया, फिर डराया गया, और आखिर में मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए गए। मैंने अपने माँ बाप को मज़हब के बारे में कभी इतना कट्टर नहीं देखा जितना इस बार देखा। उन्होंने मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल न दिखाने के लिए कहा है। इस बार वापस आते हुए मैं अपनी कश्तियाँ जलाकर आया हूँ, और ये आसान काम नहीं था, मगर मैंने ऐसा कर लिया। अब अगर तुम मेरे अंकल को फ़ोन करके इनसे मेरे बारे में पूछोगी तो वो मेरा नाम गालियों के साथ लेंगे। मज़हब तब्दील करते हुए मुझे लगा था ये बहुत आसान काम है, मगर ये आसान काम नहीं था, खासतौर पर मुझ जैसे शख्स के लिए जो रिश्तों को बहुत अहमियत देता हो। अपने माँ बाप को यह हकीकत बताने के बाद मैंने इनका जो रवैया देखा, इसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं सोचता था खून के रिश्ते गंवाने के बाद मेरे पास क्या रहा है, मगर फिर ख्याल आया कि मैं हिसाब क्यों कर रहा हूँ। मज़हब मैंने सौदेबाजी की खातिर तो नहीं बदला। जब एक रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो फिर ये क्यों सोचूं कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़कर जा रहा हूँ, या मंजिल पर पहुँचकर हासिल होने वाली चीज़ें इन छोड़ने वाली चीज़ों से ज़्यादा और बेहतर होंगी या नहीं। कोई भी इंसान एक वक्त में दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। मैं यही हमाकत कर रहा था। मैंने अपनी मर्जी की एक कश्ती का इंतखाब कर लिया। अब इसके बाद मैं डूबूं या बचूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उम्मीद को लग रहा था वो जिस खाई में अब गिरी थी इससे कभी बाहर नहीं आ सकती। फिर जर्मनी में मुझे तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल आया, और मैं सोचता कि ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ खूनी रिश्ते जो मुझे छोड़ने पड़े हैं, इनके बदले मेरे पास दूसरे रिश्ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो इनके सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, मगर फिर इन्हें सब कुछ मिल गया था। वो एक बार फिर वही रेफरेंस दे रहा था जिसे वो इसकी मकारी और फरेब समझती थी। उम्मीद का दिल चाहा वो डूबकर मर जाए। मेरी ज़िंदगी में मज़हब इतना अचानक दाखिल हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा ख्याल हमेशा यही रहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, मगर बाकायदा तौर पर मज़हब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितनी बड़ी कमी का शिकार था। ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल थे, मगर आज तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी आगे मुझे किस किस आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। हर आसमानी मज़हब इंसान को आजमाता ज़रूर है, मगर इस्लाम तो इंसान को कुछ और ही तरह से आजमाता है। ये ऐसी आजमाइशें सामने ले आता है जो बंदे को कुंदन बना देती हैं या फिर राख का ढेर। और पिछले 1-1.5 माह से मैं भी ऐसी ही आजमाइशों से गुजर रहा हूँ। कुंदन बनने में मुझे बड़ा वक्त लगेगा, मगर मुझे फ़ख्र है कि मैं राख का ढेर नहीं बना।
उम्मीद ने इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी जब मैं बिल्कुल मुतमिन हो चुका था कि मेरा कैरियर बन चुका है। चंद माह तक मेरी प्रमोशन होने वाली थी और फिर अपनी कंपनी का रीजनल रीजनल हेड बन जाता। मगर मेरे सामने दो रास्ते आ गए, मुझे इंतखाब करना था और मैंने इंतखाब कर लिया, रिज़ाइन कर दिया। अजीब बात है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। और अब इतने सालों के बाद एक बार फिर से मुझे अपना कैरियर बनाना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप मुझे इस तरह छोड़ देंगे। मुझे लगता था मेरा इनसे ताल्लुक बहुत गहरा है और मैं इनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर मैंने इनकी नाराज़गी की परवाह नहीं की। एक बार फिर मुझे इंतखाब करना पड़ा और मैंने अपने मज़हब को इन पर तरजीह दी। और अब तुम मेरे सामने एक आजमाइश बनकर आ खड़ी हुई हो, बेयकीनी और बेतमादी की इंतहा के साथ। डेंटल एडकर मेरे वजूद का साया बन चुका है, ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। कोई भी शख्स अपना हाल और मुस्तकबिल तो बदल सकता है, मगर माजी नहीं बदल सकता। मैं भी नहीं बदल सकता। ये हकीकत हमेशा हकीकत ही रहेगी कि मैं एक यहूदी का बेटा हूँ और मेरी माँ क्रिश्चियन है, मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या इस वाले से सारी उम्र मुझे गालियाँ दोगी और शक करोगी? तुम तो शादी से पहले ही जानती थी कि मैं यहूदी हूँ। मेरी नस्ल की खसूसियत के बारे में तुमने तब क्यों नहीं सोचा? इसके पास ईमान के सवाल का जवाब नहीं था। इसके पास शायद अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। मेरे चंद हफ्ते की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे खिलाफ इस तरह सबूत इकट्ठे किए जैसे मैं कोई बहुत खतरनाक मुजरिम था, जिससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाता इतना ही बेहतर होता। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर को भी सफाई का मौका दिया जाता है। तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। मुझे कत्ल करने की प्लानिंग कर ली। इसने सर झुका लिया। ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ सकती थी। मुझ पर शक था तो मुझसे बात कर सकती थी। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मोहब्बत ना होने का मतलब ये तो नहीं कि मोहब्बत हो ही नहीं सकती। उम्मीद ने अपने पैरों की उंगलियों पर पानी के चंद कतरे गिरते देखे थे। मेरा ख्याल था कुछ वक्त गुजरेगा, फिर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो, मेरा इहसान, मेरी कुर्बानियाँ तुम्हारा दिल जीत लेंगी। तुम मेरी परवाह करने पर मजबूर हो जाओगी। कोई फिल्म हो, ड्रामा हो, नावल हो या फिर हकीकी ज़िंदगी में, इन सब में ऐसा ही होता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये गलत फहमी थी कि जहाँ ज़ेब तुम्हारी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब था जिसे तुम बंद कर चुकी हो। मैं ये नहीं जानता था कि तुमने इसे हमेशा अपने और मेरे दरमियान रखा। तुमने इस शख्स को कभी अपनी ज़िंदगी से जाने ही नहीं दिया। इसने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। हाथों की लर्जिश को छुपाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। ईमान के लहजे में जलकता मलाल इसके पूरे वजूद को लरसा रहा था। तुम्हें पता है उम्मीद, इस शख्स ने तुम्हारे साथ क्या किया? इसने तुम्हारे अंदर बेयकीनी का एक बीज बो दिया है और तुमने इस बीज को सींच कर दरख्त बना दिया। अब बेयकीनी और बेतमादी का ये दरख्त इतना तनावर बन चुका है कि तुम चाहो भी तो इसे काट नहीं सकती। इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो नहीं जानती थी ईमान भी कभी इससे ये सब कह सकता है। कोई शख्स अपनी बंद मुट्ठियों में धूल लेकर आता है और आपकी आंखों में धूल फेंक कर चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स की बंद मुट्ठी में धूल ही है, जिससे बचने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करना पड़ेंगी। कम से कम मेरी मुट्ठियों में तुम्हारे लिए धूल नहीं है। वो इसे अपने हाथ दिखा रहा था। मैंने कभी मोहब्बत के वजूद पर यकीन नहीं किया। शायद इसलिए मुझे मोहब्बत होगी और मेरी मोहब्बत ने मुझे यकीन और ईमान दिया। तुमने हमेशा मोहब्बत के वजूद पर यकीन किया। मोहब्बत तुम्हें भी हुई, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं दी। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत इसकी बातें सुन रही थी। हम दोनों की मोहब्बत के मेयार में फ़र्क था ना इंतहा में। जिस शख्स से मोहब्बत कर रहे थे इस शख्स में फ़र्क था। तुम में खोट नहीं था, जहाँ ज़ेब में था। आग का काम पकाना होता है। इस पर सोना रखेंगे तो वो इसे कुंदन बना देगी, मगर पानी रखेंगे तो बाप बनकर उठ जाएगा। इसे लग रहा था सब कुछ खत्म हो रहा है। हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है, मगर रिश्ता टूटा नहीं है। उम्मीद, हमें ये अभी तय कर लेना चाहिए कि इस ड्रॉ को पुट कर देना चाहिए, इस दरार को पुट कर देना चाहिए या रिश्ता मुकम्मल तौर पर तोड़ देना चाहिए। कोई मुझे जानबूझकर डेंटल एडकर कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। डेंटल एडकर से ईमान अली बनने तक का मैंने एक लंबा सफ़र तय किया है। बहुत कुछ छोड़ा है मैंने, और जिस शख्स को मेरी इस शनाख्त पर यकीन नहीं है, मुझे इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना। इसके लहजे में कतईयत थी। तुम्हें छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ जितनी मुझे अपने माँ बाप को छोड़ते हुए हुई। मगर मैं अब किसी कसौटी पर परखा जाना नहीं चाहता। मैं बार बार लोगों को वजाहतें पेश कर सकता हूँ, ना ये यकीन दिला सकता हूँ कि मैं वाकई मुसलमान हूँ। मैं किसी को ये यकीन दिलाना भी नहीं चाहता। मैंने लोगों के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया। ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है और मेरी नीयत को जांचने का इख्तियार सिर्फ इसे है, किसी दूसरे को नहीं। तुम्हें भी नहीं। वो इसकी तरफ उंगली उठाते हुए कह रहा था, अगर तुम्हें मुझ पर इत्मीनान नहीं है या ये शुबा है कि मैं अभी भी मुसलमान नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें मुझको छोड़ देना चाहिए, मुझसे अलग हो जाना चाहिए। इसकी आवाज़ में शिकस्तगी थी। मेरे साथ रहकर अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें हक है तो कि तुम मेरे साथ ना रहो, मगर अपने जहन से ये निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया या आइंदा कहीं भाग जाऊंगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पर अपनाता हूँ। तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख सकती हो। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब तक बच्चे को अपने पास रखना चाहो रख सकती हो। अगर दूसरी शादी करना चाहो और बच्चे को पास ना रखना चाहो तो मैं इसे अपने पास ले जाऊँगा। अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ। जितना अरसा यहाँ रहूँगा तुम दोनों से राब्ते में रहूँगा। अगर वापस कहीं और जाना पड़ा तब भी तुम लोगों के अखराजात पूरे करता रहूँगा। इसके बदले में ये ज़रूर चाहूँगा कि तुम मुझे अपने बच्चे से मिलते रहने दो। इससे शायद पहली बार अपनी कनपटी से बहने वाले खून का एहसास हुआ था।
इससे शायद पहली बार अपनी कनपटी से बहने वाले खून का एहसास हुआ था। अपने जख्म को इसने हाथ से छुआ और फिर उंगलियों पर लगे हुए खून को देखा। सर उठाकर इसने उम्मीद को देखा, शायद वो कुछ और कहना चाहता था, मगर फिर वो कुछ कहने की बजाय स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गया। दराज खोलकर इसने कुछ निकाला था और फिर उम्मीद की तरफ उछाल दिया। उम्मीद ने अपने पैरों में गिरने वाली इस चीज़ को देखा और होंठ बींच लिए। वो रिवॉल्वर की गोलियां थी। मुझे अगर एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आ जाता कि ये रिवॉल्वर यहाँ तुमने मुझे मारने के लिए रखा है तो मैं कभी इसमें से गोलियां ना निकालता। मौत तुम्हारे मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों से ज़्यादा तकलीफदा नहीं हो सकती थी। वो ज़मीन में धंसती जा रही थी। मुझे तुमसे इस कदर मोहब्बत है अमीर कि तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी। चौकीदार को भेजना, रिवॉल्वर को छुपाना, मुलाजिम को गायब करना। वो अजीब से अंदाज में हंसा। तुम जब चाहती मेरे सामने खड़े होकर मुझे मार सकती थी। मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता। चाहो तो अब भी आजमा कर देख लो। वो कुछ देर इसके सामने जैसे मुंतजिर सा खड़ा रहा, यूं जैसे इसे यही करने की दावत दे रहा हो। वह हिल भी नहीं सकी। वह थके थके अंदाज में स्टडी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उम्मीद ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, मगर वो स्टडी से निकलने की बजाय वहीं रुक गया। तुम अगर पछता रही हो तो मत पछताओ, मैं तुम्हें इस सब के लिए माफ़ करता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। स्टडी का दरवाज़ा बंद हो गया था। वो स्टडी से निकलकर किचन में आ गया। फ्रिज खोलकर इसने पानी की बोतल निकाली और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। ग्लास में पानी डालकर इसने पानी के चंद घूंट पिए। सर में कुछ बहुत देर पहले लगने वाले जख्म की तकलीफ का एहसास इसे अब हो रहा था, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो उठकर अपने जख्म को साफ कर ले। बैंडेज करने की कोशिश करता, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए, कोहनियाँ टेबल पर रखे वो सामने पड़े हुए गिलास को देखता जा रहा था। कुछ देर पहले होने वाले वाक़यात इसे एक ख्वाब की तरह लग रहे थे, मगर वो जानता था कि वह सब ख्वाब नहीं था। वो जैसे दुनिया के आखिरी सिरे पर आकर खड़ा हो गया था। वापस जाने का रास्ता वो भूल चुका था। आगे कदम बढ़ाने पर पैर के नीचे ज़मीन आएगी, खला आएगा या फिर पानी, वो नहीं जानता था। क्या मैं अब इसी तरह अकेला रह सकता हूँ जिस तरह उम्मीद के आने से पहले रहता था? इसे अपनी आंखों में पहली बार नमी उमड़ती महसूस हुई। होंठ बींचकर इसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी। थकन का एहसास कुछ और बढ़ गया था। इसने पीछे हटकर अपनी पुश्त कुर्सी से टकाकर आंखें बंद कर ली। डाइनिंग टेबल के ऊपर लटकने वाले लैंप की रोशनी में डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठे हुए ईमान के अलावा हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही थी। इसका वजूद इस रोशनी में बेहिस्सा हरकत नज़र आ रहा था और इसके चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी चेहरे पर मौजूद हर तासर को वाजिया कर रही थी। थकन, मायूसी, अफसरदगी, बेयकीनी, बेचैनी, अस्तराब और उम्मीद। वहाँ क्या था, वहाँ क्या नहीं था।